Good evening, students. As I have forwarded you the video which is related to the chapter of working capital management, please listen to that audio first. Now I am directly moving to the part of the practical of this chapter. So as I have already told you that the working capital management one, it is divided into two categories. First one is called as the balance sheet concept, and second is called as the operating cycle concept. बैलेंस शीट का मतलब है द कंसेप्ट वेयर वी सब्ट्रैक्ट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, राइट? And operating cycle, it relates to the cycle of number one, raw material, purchasing of raw material, then moving to work in progress, then finished goods, and cash received from debtors. So these are the four steps which are being followed in the operating cycle concept. Firstly, we purchase the material, then that material purchased is being converted into work in progress. Work in progress के बाद में when the things are being produced, then it comes into the category of finished goods, and then the finished goods when these are being sold to the customer and we receive the cash from the debtor. So this is called as the last one, right? So this is a form of a cycle. So coming back again to the title of the chapter, that is working capital. Working capital का मतलब है वो पैसे जो हमें डे टू डे पर्पस के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, which consist of your current assets and current liabilities in the balance sheet concept, and which relates to the operating cycle concept, categorized into four parts: purchasing of raw material, some material is being required in work in progress, then conversion of the material into finished goods, एंड देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर. देखो पैसे तो आपको सबसे लास्ट में मिलने हैं ना, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज में जो भी आपका पैसा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? द मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल, राइट? नाउ कम्स टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट. I am solving here the illustration number 3rd. So please open your book, chapter number 9, illustration number 3rd. So before solving this illustration, there are total 4 formulas which are being used in this operating cycle. मैंने सबसे पहले कौन सा बोला? रॉ मटेरियल परचेज. दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल का परचेज है, it is computed with the help of average stock of raw material divided by raw material consumption per day. एक्चुअली इन 4 फॉर्मूलाज में हमें निकालना क्या है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो पहला क्या है? रॉ मटेरियल परचेज. रॉ मटेरियल परचेज मींस कितना एवरेज स्टॉक आपको चाहिए रॉ मटेरियल का, डिवाइडेड बाय कितनी आपकी कंजम्पशन है. रॉ मटेरियल की कंजम्पशन क्या है पर डे. देन सेकंड कम्स इनटू सेकंड पार्ट, आई टोल्ड यू दैट इज WIP, which is called as work in progress. So इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक. एवरेज कैसे निकलता है? इट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP stands for work in progress divided by, it is you can say it is the total cost of production per day. हमें डेली बेसिस के ऊपर इसकी जो कंजम्पशन है दैट वी आर सपोज टू कंप्यूट. थर्ड इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय COGS. COGS क्या होता है? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम निकालते हैं किसकी हेल्प से है? अगर आप सेल्स में से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट तो वी रीच एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ फोर्थ इज डेटर्स. दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटर्स कलेक्शन पीरियड और द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. सो इसको हम लिखेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड. सो डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स
डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। इसमें आपको ध्यान रखना है दैट वी आर सपोज टू टेक ओनली द क्रेडिट सेल, बिकॉज जिसको आपने कैश पे सेल कर दिया वो कैश तो आपके पास ऑलरेडी आ गया। तो इसमें जो उधार पे आपने सेल की है सिर्फ वही टाइम स्लॉट जो है, वही टाइम पीरियड आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो यू विल डिवाइड हियर बाय द क्रेडिट सेल। सो इन चारों स्टेप्स को आप क्या करोगे, यू विल ऐड देम, रॉ मटेरियल का टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड देन डेटर्स कलेक्शन पीरियड। सो फिफ्थ पॉइंट और लास्ट इसमें हम निकालते हैं दैट इज द क्रेडिट कलेक्शन, क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड। जिनसे हमने परचेज किया है वो हमें कितना टाइम क्रेडिट देते हैं। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, एवरेज स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। सो एड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जितने भी नंबर ऑफ डेज आपको इन चारों में निकलते हैं उनको प्लस करो, और प्लस करने के बाद में फिफ्थ में से माइनस कर दो। आपके पास क्या आ जाएगी, यू विल गेट द वर्किंग कैपिटल डेज रिक्वायरमेंट, कि कितने डेज के लिए आपको कैश रिक्वायर्ड है, ठीक है।